So today Hariom Smiles Chennai आया है and we have come here to heal everybody. Smile means see magic in life every second. And so tomorrow we have a session in Chinmaya Heritage Center from 3 to 5, wherein we are going to transform people's life as Hariom Smiles has been traveling around India, around the globe, healing everybody. So, we just want to ignite a soulful revolution because we don't just want to heal physically, we want people to heal emotionally, mentally, and spiritually. So, Smile is no organization, it is not also a mission, it is a wave, a movement to bring a transformation in today's world. In today's world, all the youth are living a life, say, about a rat race. They're just running without having the right direction. So we just want to give them a pause for peace, a pause for purpose, and transform their life from stress to strength. We want them to live a life where there is no chaos, but there is clarity of life. We want to save them from breakdowns and we want to give them breakthroughs. So, Smile elevates the soul power, and we all are focused on a good lifestyle. So, everybody is investing on beautiful lifestyle, but we want to focus more on great life. Beautiful lifestyle means lots of things, lots of materialistic things for which people are running and want life to be very successful. But Smiles कहता है ना कोई मन से अपंग हो ना कोई तन से अपंग हो. And if we see आज पूरे वर्ल्ड में मन की अपंगता मीन्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. जितनी ग्रोथ हो रही है हमारी उससे तेज़ी से ग्रोथ हो रही है मेडिसिन्स की, डिजीज़ेस की. एंड वी हैव अ मैसेज फॉर द सोसाइटी that there is no disease in human body, it is always dis-ease. अगर आपका माइंड सेटल्ड नहीं है, अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है, सो आप बॉडी में डिस-ईज पैदा करते हैं बिकॉज इनसाइड यू आर नॉट एट रेस्ट. So people are trying to look for happiness outside, and we are awakening people, letting them know that your happiness and peace is always inside. So we have to move from inside to outside. So this is Journey of Smiles, where we have healed lakhs of people from ailments which they were living with those ailments since 10 years, 25 years, so very old ailments, and they have come to Smiles और एकदम मैजिकली वो हील हो जाते हैं. एंड यू नेम एनी एलिमेंट, वेदर इट इज़ फिजिकल, वेदर इट इज़ मेंटल, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, सो देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. So, you know, everybody is nowadays showing smile, but that curve on the face comes when there is Insta or when there are cameras around, when they are taking selfies. But smile वो जो curve है वो अंदर soul को देता है. So it gives that curve inside the roots of a human being, and when the soul smiles, the world automatically heals. तो हम एक जने की गारंटी नहीं लेते हैं, दो जने की नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दैट इज़ वाई आवर स्लोगन इज सर्वे भवन्तु सुखिनः, एंड वी आर वर्किंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड टू एलिवेट द सोल जर्नी. सो सब लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा, तो हम बताते हैं कुछ भी नहीं, हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की आपस में मैरिज कराना चाहते हैं, अ वेडिंग कनेक्शन विद अ हायर कॉन्शियसनेस. सो हम अनलिमिटेड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं थ्रू दिस लिमिटेड बॉडी, whereas when we come to Smiles, we learn that we are unlimited beings, we have immense power within, but now we have become dependent upon gadgets. तो हमें लगता है कि जितने गैजेट्स लाइफ में आएंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जितना ब्रांडेड स्टफ आएगा, हम हैप्पी हो जाएंगे. बट वी हैव सीन इट अराउंड पीपल दैट great life means contentment when you are happy in all state of life. So we guarantee
कि आपको ग्रोथ भी मिलेगी, बट अभी लोग प्रोग्रेस और ग्रोथ का मतलब नहीं समझ रहे. लोग समझ रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज सक्सेस, बट हम बता रहे हैं सक्सेस मीन्स वेदर थिंग्स अराउंड यू आर अकॉर्डिंग टू यू और नॉट. आपको कहीं सक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी आपके फेस पे वो कर्व रहे, वो स्माइल रहे, आपके अंदर भी वो स्माइल रहे, दैट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू गिव. दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एंशियंट विजडम. हमारा जितने भी ऋषि मुनीस थे, उन्होंने जो हजारों साल पहले फाइंड किया कि इस बॉडी में बेस्ट ऑफ द हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, विच स्टेट में, तो उन्होंने फाइंड किया कि जब हम दान करते हैं, जब हम किसी को हेल्प करते हैं अनकंडीशनली, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस के हार्मोन सिक्रीट करती है. नाउ बिकॉज सोसाइटी में लाइफ ऐसी हो गई है कि एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट आईफोन, आईपैड, सो आई पे इतना ध्यान हो गया कि इलनेस बढ़ती जा रही है, और हम सब उस चीज़ के विटनेस है. जितनी कंफर्ट, जितना फ्रीडम, जितनी एजुकेशन आज के यूथ के पास है, आज की सोसाइटी के पास है, उतना अर्थ पे पहले कभी भी नहीं हुई. बट उससे भी स्पीड से बढ़ रही हैं बीमारियां, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. सो वी आर ऑन दिस जर्नी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पीसेस टू पीस, फ्रॉम chaos to clarity, from I means illness, we want to bring everybody to we means wellness. So wellness, so I request everybody to attend tomorrow's session, which is cure is sure. The only condition is that your mind should be pure. So people are working on lifestyle, whereas we want to work on their mindset. If their mind is settled at the right place, means हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी समझाते हैं, हम लिम्फिक ब्रेन भी पढ़ाते हैं, हम रूट ब्रेन भी पढ़ाते हैं, फिर हम ये भी बताते हैं कि कैसे मंत्रास का कनेक्शन है इन सबको सिंक्रोनाइज करने में. इफ वी आर चैंटिंग द राइट मंत्रा, तो हमारे ब्रेन पैटर्न बीटा वेव से कब अल्फा पे और अल्फा से थीटा पे आ जाता है, विच इज़ लाइक वेरी फास्ट वर्किंग. अभी हमारे जितनी भी मेडिटेशंस हैं, हमारे जो टूल्स हैं स्माइल्स में, उनके ऊपर न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे हैव फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स. सो हम लोग हवन कराते हैं, एंड दिस हवन, इससे हम 20 किलोमीटर्स ऑफ एरिया को बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन से भर देते हैं. उस एरिया में जहाँ पे ट्रीज भी ब्रीथ कर रही हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के अलावा भी ब्रीथ कर रहे हैं, एंड वी हैव शोन द रिजल्ट्स दैट देखते ही देखते एलिमेंट्स ठीक हो जाती हैं. सो हरिओम स्माइल्स इज़ अ वेव, जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी फील कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो हम सबका लेने की तरफ ध्यान है. हरिओम स्माइल्स देना सिखाता है. सो डायरेक्ट बेगरी से देवता की पोजीशन पे बिठा देता है. एंड यू विल मीट सो मेनी पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ हरिओम स्माइल्स, विल शेयर देयर लाइव्स कि लाइफ में एकदम सब कुछ चेंज हो गया. चेंज हो गया का मतलब ये नहीं है कि आसपास अब कोई चैलेंजेस नहीं रहे, बट नाउ दे नो हाउ टू हैंडल देयर चैलेंजेस with lots of peace, lots of smile, and they are always in a state of calmness. तो ये जीने का तरीका है, ये कोई एक रिलीजन नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है ऐसा फॉलो करना, बस you have to be in a state of gratitude. So gratitude is one of our tools. There are lots of tools like pink energy, salt therapy, solar plexus, Shambhavi sadhana. तो हम अलग अलग कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से महर्षि इफेक्ट पैदा करते हैं. महर्षि इफेक्ट वो इफेक्ट है जिससे कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. सो जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस अपने आप एटमॉस्फेयर में से ही चला जाता है, एंड पीपल सडनली फील दैट दे हैव अ मोर स्टेबल लाइफ एंड दे हैव मोर कंपैशन फॉर पीपल अराउंड देम. तो ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं. स्माइल सेज दैट ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड हमें बताता है. हमारे जितने भी ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे
like putting a bindi, like wearing bangles, like wearing bichiya या पायल, या जितने भी हमारे festivals हैं, they were all scientifically based, जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर को अपने अंदर ही क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से डिजीजेस नहीं आते थे. ग्रेजुअली वी स्टार्टेड फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर सो मच कि हमने इन सबको सुपरस्टिशन मानकर धीरे 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 छोड़ दिया. हम यूथ को वापस कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनके कल्चर के साथ, बिकॉज ऑल दिस इज कनेक्टेड टू हायर कॉन्शियसनेस. सो इट्स नॉट सुपरस्टिशन, इट इज़ सुपर कॉन्शियसनेस. क्योंकि हम देख ही रहे हैं सोसाइटी में बहुत डिग्रीज आ गई हैं, बहुत पैसा आ गया है, बहुत फ्रीडम आ गया है, बट उतना ही बंधन हो गया है अपने ही विचारों का, अपने ही डर का, अपने ही स्ट्रेस का. सो हम चाहते हैं कि हम इससे आज़ाद कराएं, हमारे यूथ को स्पेशली आज़ाद कराएं हु आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. और हम वहाँ देख ही रहे हैं, आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज़, और वहाँ पे रेशो ये निकल के आया है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देम, लोनलीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो हम अपने भारत को उससे बचाना चाहते हैं. हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है और विश्व गुरु बनने की कला रखता है, क्योंकि हज़ारों लाखों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनीज़ ने सर्च किया, उस पर आज भी रिसर्च हो रही है, तो भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है जितना उन्होंने फाइंड कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई मेंशन पतंजलि जी, तो उन्होंने माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन वे बैक बता दिया था. अब न्यूरो साइंटिस्ट भी वही बोल रहे हैं, फिज़िक्स भी वही बोल रही है. दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिज़िक्स, जो हमारे ऋषि मुनीज़ ने बहुत साल पहले खोज लिया था. तो हम मेडिटेशन के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक हीलिंग गैजेट है अपने आप में. अगर किसी भी और एनिमल को, जो जंगल में रह रहे हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, जो वाटर में रह रहे हैं, अगर उन्हें डिजीजेज नहीं हो रहे, देन व्हाई विद ह्यूमन बीइंग्स? वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव ऑल द एजुकेशन, वी हैव सच गुड हाउसेस, स्टिल वी आर सफरिंग इन सो मेनी वेज. उस सफरिंग से हमें एक जीवन का सफ़र बहुत सुंदर बनाना है, जहाँ बड़े घर में रहें, जहाँ बच्चे उनकी सेवा करें, जहाँ स्वयं के लिए टाइम हो. वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. Now we don't want to paint the face with smile, we want to paint the soul with a smile, and that soul journey should be known to everybody, to all the people, all age group. इसमें ये भी नहीं है कि बड़े छोटे, सब एज ग्रुप इससे ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं. So this is what Hariom Smiles is doing. In fact, this is the fourth program. First was the Rubaru, and then we did a 2-day session which was known as ध्यान का ज्ञान, जिसमें हम पूरी बॉडी का मैनुअल पढ़ाते हैं. हाउ डज, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज सो मच कनेक्टेड टू वाईफाई टुडे, वी टीच पीपल वाई आई इन दिस वर्ल्ड. ध्यान का ज्ञान में वो सीखने को मिलता है. देन वी हैड एन आर्टिफिशियल लिम्स कैम्प, बिकॉज हमने एक ड्राइव चलाई थी, ना कोई मन से अपंग ना कोई तन से अपंग. सो वी हैड दीज आर्टिफिशियल लिम्स कैम्प ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से चेन्नई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. एंड नाउ वी हैव दिस क्योर इज श्योर, एंड वी आर वेरी श्योर दैट कल जो भी आएगा वो अपने हर डिजीज से, इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट सब अपना मेडिकल टेस्ट करवा के आएँ, मेडिकल रिपोर्ट्स अभी चेकअप करा के आए, नेक्स्ट डे ही देखें कि उनके मेडिकल पैरामीटर्स में कितना चेंज आ गया है. It is not chargeable, because सोल से क्या चार्ज करेंगे? It's a way to reciprocate to love. वो लव जो हमें यूनिवर्स देता आया है. See, this whole of this nature has been serving us. सन हमें धूप भेज रहा है, वो कोई चार्ज नहीं मांग रहा. वाटर गंगा का आता है हिमालय से, वो कोई चार्ज नहीं मांग रहा. ये एयर कोई चार्ज नहीं मांग रही. So likewise it smiles. It is just on a movement to heal everybody. What is the main vision of Smiles? As I mentioned, we want to ignite a soulful revolution where we are not healing only the symptoms. Now the whole world is healing the symptoms. So they are healing physically, only the body. But we want to heal every person emotionally, mentally and spiritually. So we envision a society where everybody make peace with their own self, where they pause and have a purpose to their life, where they have space, you know, everybody has a space to connect to their inner self, the core self. And you know, nowadays everybody has a scrolling life, so they're always scrolling.
but we want them to give a soulful living, soulful life. Smile will give an impact to nowadays youths. Definitely, it is meant for a youth because see, smile enhances your memory power. Smile enhances your decision making power. And definitely, youth needs all these things. Smile teaches how to be multi dimensional. Now, what is happening is children or youth are multitasking. So, we say don't become multitasker, in fact become a master of your life, become a master of all the situations. You don't have to get carried away with the situations around. You have to turn every situation into an opportunity, which smile is teaching. So smile is working in all arenas, and definitely this is the best time for the youth to understand that. You see, science and spirituality is connected. Oh yeah, definitely. See, one thing common in science and spirituality is both are trying to find what is possible from impossible, and they do it. You know how much science has done so many inventions, wherein if I talk 50 years back, nobody would have thought that we'll have a phone, like a phone which we can carry in our pocket, and we can talk to anybody, or we can talk on video calls and all. So impossible में से possible science ने करके दिखाया है. और स्पिरिचुअलिटी में अगर हम आर्यभट्ट जी को देखें, सो थाउजेंड्स ईयर्स बैक ही इन्वेंटेड जीरो, ही न्यू द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन. सो ये सब तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस में बस यही फर्क है. साइंस अंदर से बाहर की ओर जाता है और स्पिरिचुअलिटी बाहर से अंदर की ओर लेकर आती है. You are promoting the meditation. Can it help to change our situations? Definitely. First of all, meditation definitely changes the situation, but bigger than that, it changes our way of looking at the situation. It gives us a new lens, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि बदलो और सृष्टि बदल जाएगी. So our attitude towards the situation changes, and the moment our attitude changes, our altitude changes, and when the altitude changes, our aptitude also changes. So situation चाहे वही हो, but हमारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा. If I'm driving on this road, there'll be so many red lights, turns, curves, and so many stops where I have to stop my car. But if I'm flying in an aeroplane, I will just see those things. I will just visualize from above. So meditation is a lift. It gives you a flight to fly. You still witness things, but you don't get into that chaos. So meditation elevates you. What is your advice for new generation? They all are lectured totally with the gadgets. Yeah, I would request all these gadgets came to our life to give us comfort. So anything which is in our control give us freedom. But when we come in control of things, it takes away our freedom. तो ये जितने भी गैजेट्स हैं, इन्होंने हमारा फ्रीडम ही छीन लिया, हमारी लाइफ ही छीन लिया, हमारा टाइम ही छीन लिया है. सो हम इन लोगों को सिखाते हैं डिजिटल डिटॉक्स, विच वी डोंट आस्क देम टू डू. वी transform their frequency, their energy, so automatically they get away from those gadgets because they are looking for happiness from those gadgets. But जब उन्हें अपने अंदर से ही happiness मिलने लग जाती है, तो they understand, इतनी clarity आ जाती है उनके brain में, that is why we make sure that we work upon their prefrontal cortex, जो हम मंत्रास के द्वारा करते हैं. And once there is a clarity, they know कि अभी हमें इतनी time के लिए, so they keep fast off from all these gadgets, and then they feel very relaxed, and then they see themselves कि उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है. जो भी वो अपने गोल्स बना रहे थे, वो उनकी स्पीड बढ़ जाती है उन गोल्स को पाने में.